Yeah. Hello students. I hope you all are doing good. बच्चों, in the previous class we discussed organic conversion part 1. Okay? In part 1 we studied about ascent of series. So what do you mean by ascent of series? Yes, roll number 2. Increase of carbon chain. Yes, yes. Increase of carbon chain. Have you all understood? Yes, ma'am. Very good. Now, ascent of series, that means increase of carbon chain can be done by 4 methods. First one is by Wood's reaction. Which reaction is this? Wood's reaction. Yes, it is a name reaction, very important reaction. You'll study it in class 10th, 11th, 12th and in higher level also. It's a Wood's reaction. Now you can see here methyl chloride is taken. मैंने क्या लिया है बच्चों? Methyl chloride. You can call it as chloromethane also. अगर आप सामने से पढ़ोगे right to left, methyl chloride. Okay, if you name it from left to right to left, sorry, this one was from left to right and then right to left, chloromethane. Okay, both the names are approved. Now here you can see, ध्यान से देखिए, methyl chloride, 2 molecules we have taken, right? It is reacted with sodium metal, and 2 moles of sodium metal, they extract 2 chlorine atoms and sodium chloride is eliminated out and we get CH3. You can see here CH3 dash CH3. 2 carbon atoms, and if you write the graphic formula, you can see valency of carbon is satisfied. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Clear? Valency of carbon is satisfied by hydrogen atoms. So now the compound is called ethane. So earlier we had 1 carbon atom in a compound. After reaction you can see carbon chain increases. Now we have 2 carbon atoms in the chain. So in this way you can increase the length of carbon chain also. Is this clear to everyone? Yes, ma'am. Okay. Yes. But why we use dry ether? This one, dry ether. Yes, ma'am. Actually, we all know sodium metal is highly reactive metal. What type of metal it is? It is highly reactive metal. So it reacts violently with water. It is highly exothermic also, and it reacts violently with water. So there should not be any traces of water. And to keep the environment inert, we use dry ether. क्या होगा बच्चों, ये जो सोडियम है बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल है, पानी के साथ बहुत वायलेंटली रिएक्ट करता है, तुरंत आग लग जाएगी. क्लियर? सो क्या करना है, ट्रेसेस ऑफ वाटर भी नहीं होना चाहिए. सो टू कीप द एनवायरमेंट इनर्ट मतलब कुछ और वहां मॉइस्चर या दूसरे गैसेस नहीं होने चाहिए, इसलिए हम क्या यूज करते हैं, ड्राई ईथर. क्लियर? Yes, ma'am. वेरी गुड. सो सेकेंड मेथड, थ्रू साइनाइड. साइनाइड मेथड से भी हम कार्बन चेन को बढ़ा सकते हैं. देखो कैसे. नाउ हियर आई हैव टेकन मिथाइल एल्कोहल. इसका आईयूपैक नेम मिथेनॉल भी होता है. व्हाट इज द आईयूपैक नेम? मिथेनॉल. मिथ मीन्स 1 कार्बन एटम. इसमें कितने कार्बन एटम है? 1. सो 1 कार्बन एटम मीन्स मिथेनॉल. ऑल क्यों हुआ? बिकॉज इट हैज एल्कोहल. क्लियर? अब देखो इसके नेम में ही इसका स्ट्रक्चर छुपा है. 1 कार्बन एटम मीन्स मेथ. 1 कार्बन एटम को क्या कहते हैं? मेथ. और ये सैचुरेटेड रहेगा, मतलब पूरे सिंगल बॉन्ड रहेंगे, इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसलिए ये क्या हुआ, एन. ओके. और एल्कोहल है फंक्शनल ग्रुप, देयरफॉर सफिक्स क्या हुआ, ऑल. क्लियर? इफ यू राइट द ग्राफिक फॉर्मूला ऑफ मिथेनॉल, आपको कैसे होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड OH. कैन यू सी द फॉर्मूला हियर? CH3OH दिख रहा है. सारे सिंगल बॉन्ड से सबकी वैलेंसीज सेटिस्फाइड हैं. सो हियर दिस मिथेनॉल व्हेन इट इज ट्रीटेड विथ आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस, दिस रिएक्शन वी डिस्कस्ड इन पार्ट 1 आल्सो. एसेंट ऑफ सीरीज के फ्लो चार्ट में हमने डिस्कस किया हुआ है. इट रिएक्ट्स टू फॉर्म मिथाइल आयोडाइड. अब भी देखिए एक कार्बन है, जैसे ही कार्बन एटम एक होगा समझ जाइए नाम क्या होगा, मिथ. क्या वर्ड रूट क्या होगा, मिथ. यस. सो दिस इज मिथाइल आयोडाइड. इस आयोडाइड को रिएक्ट करते हैं KCN, पोटेशियम साइनाइड. यू नो चिल्ड्रन, दिस पोटेशियम साइनाइड इज हाईली पॉइजनस कंपाउंड. ओके. सो ये पोटेशियम साइनाइड यूज करते हैं
then Ki is removed. क्या हट रहा है? Ki minus Ki is removed and we get here you can see methyl cyanide. लेकिन जब IUPAC नाम लिखोगे then you have to count from here 1 2. Common name will be methyl cyanide. Okay, but IUPAC name will be 1 2 ethane nitrile because CN group is called nitrile in organic chemistry. Is this point clear to everyone? Good. Now let's see the third method, that is through Grignard reagent. It is through Grignard reagent. Yes, any questions? Yes. Ma'am, can we call this Grignard? No, actually G is silent here. Okay, we call it Grignard reagent. This is the correct pronunciation. Okay. Now Grignard reagent, here you can see, first of all starting compound is alcohol. ROH means alcohol. Any alcohol you can take. This alcohol is reacted with phosphorus tribromide. Phosphorus tribromide, and alcohol OH group is replaced by Br. Got it? See the reaction. OH group is the leaving group. It is replaced by Br. So we get alkyl bromide. Now it is reacted with magnesium in presence of ether. Magnesium valency is 2. Magnesium belongs to second group. Its valency is 2. So here you can see magnesium 2 valency. One valency gets satisfied by R. R is alkyl group. And second valency gets satisfied by Br. Br is bromo. Now you can call it as alkyl. Alkyl R, magnesium bromide. Yeah, repeat the name. क्या बना बच्चों? Magnesium bromide. Yes. Now it is this alkyl magnesium bromide is reacted with formaldehyde. इस कंपाउंड को क्या कहते हैं? Formaldehyde. Now एक कार्बन है, so इसका IUPAC नेम होगा मिथानॉल. मिथानॉल. आल. अर्लियर यहाँ हमने क्या बोला था? मिथेनॉल. ओके, अल्कोहल के लिए ऑल लगेगा, एल्डिहाइड के लिए क्या लगेगा? आल. मिथेनॉल. क्लियर? सो जब आप मिथेनॉल से रिएक्ट करेंगे, यू कैन राइट द रिएक्शन इन दिस वे. वैलेंसी ऑफ कार्बन 4, 2 वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन, थर्ड बाय R एंड फोर्थ बाय OMgBr. आप देखिए ये O किससे जुड़ा? Mg से. क्यों जुड़ा? क्योंकि ये मेटल है, ये पॉजिटिव है और ऑक्सीजन नेगेटिव है. क्लियर? पॉजिटिव के साथ नेगेटिव जुड़ता है. नाउ हियर दिस कंपाउंड इज हाइड्रोलाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड. H+ का मतलब क्या होता है? एसिड. एसिड के प्रेजेंस में पानी डाले. देन व्हाट हैपेंस? यू कैन सी हियर दिस बॉन्ड RCH तो बॉन्ड कहां से टूटा बच्चों? यहां से. जब हम वाटर डालते हैं, क्योंकि क्यों टूटा? क्योंकि वाटर आल्सो कंटेन्स H+ एंड OH-. वाटर इज पोलर. हियर यू कैन सी पोलैरिटी इज देयर. पोलैरिटी मींस प्लस माइनस का सेपरेशन, चार्ज सेपरेशन. गॉट इट? तो बॉन्ड कहां से टूटा? यहां से टूटा. तो क्या बना हमें? देखो ये पुराने HHR है पहले से, HHR. O भी पहले है. यहां से ये टूटा और क्या जुड़ा? H. क्योंकि O इज नेगेटिव, H इज पॉजिटिव. हमेशा नेगेटिव के साथ पॉजिटिव जुड़ेगा. अब बच्चों कैसे पहचानना है? यू सी दिस, आई हैव एनसर्कल्ड दिस पॉइंट. whenever you get CHOH then degree of alcohol is 2 degree. कौन सा डिग्री ऑफ अल्कोहल होगा? 2 डिग्री. समझ में आ गया? CHOH देखना है, तुरंत पहचानना है कि ये 2 डिग्री अल्कोहल है. एंड दिस इज द बाई प्रोडक्ट. मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, ये पॉजिटिव है, इट इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव एंड दिस वन इज नेगेटिव. इज दैट क्लियर? सो इन दिस वे आप देखो कार्बन चेन कैन बी इंक्रीज. तो यहाँ कार्बन चेन कहाँ दिख रहा है बच्चों? पहले हमने कहां से शुरू किया? ओनली R था. ठीक, R मीन्स एक कार्बन चेन है उसमें. अब यहाँ फाइनल प्रोडक्ट में देखो R के साथ क्या है? आया C. दैट मीन्स कार्बन चेन इज इंक्रीजिंग. तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको? एसेंट ऑफ सीरीज. लेंथ ऑफ कार्बन चेन इंक्रीजेस. क्लियर? एनी क्वेश्चंस? नो. ओके, वेरी गुड. नाउ लेट्स सी द फोर्थ मेथड विथ सोडियम एल्काइनाइड्स. इससे पकड़िए बच्चों. एल्काइन YN है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड होगा, 3 बॉन्ड्स. YN मीन्स 3 बॉन्ड्स. एंड दिस इज एसिटिलीन. एसिटिलीन का 1H इज रिप्लेस्ड बाय सोडियम. ओके, एंड इट इज ट्रीटेड विथ एल्किल हैलाइड. तो हमेशा सोडियम एक हैलाइड के साथ जरूर रिएक्ट करेगा, वेदर इट इज ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, कहीं पर भी आप रिएक्शन देखें, डेफिनेटली सोडियम मेटल इज देयर और एक X मतलब हैलोजन है.
X में भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हैलोजन एक है तो डेफिनेटली उसके साथ रिएक्ट करके एक कंपाउंड बनाएगा, और ये R कहाँ जुड़ जाता है, C के साथ। क्लियर? बिफोर रिएक्शन कितने कार्बन हुए, 1, राइट, 2, 3। सो आफ्टर रिएक्शन ऑल्सो इफ, अगर आप देखोगे 1, 2, 3 है, लेकिन यहां हमें कैसे लिखना है, अगर R का आपने लेंथ चेंज किया, बिकॉज R में भी CH3, R में भी CH3, CH2, आर यू गेटिंग द पॉइंट, एंड सो ऑन। तो R जैसे जैसे R चेंज होगा हमारा कार्बन लेंथ भी इंक्रीज होगा। सो इज दिस टॉपिक क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Any questions? No, ma'am. Okay, thank you all for your valuable time. See you again in the next section. Okay, bye bye.